friends, American English Academy welcomes you all. In this video session, we are going to discuss about subject-verb concord or subject-verb agreement. Before starting the topic, I humbly request you to subscribe my YouTube channel American English Academy and press the bell icon so that you should receive all the notifications of my upcoming videos. Kindly share the video with others who are preparing for the competitive exams. Thanks a lot for your support. Let's continue the topic. So first I would like to introduce the topic. I would like to tell you about concord. Students, concord means agreement. It's a kind of agreement between the subject and the verb. So the subject verb concord suggests that the verb agrees with the number and the person of the subject. In other words, you can say, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि subject, एक सेंटेंस में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर डिपेंड करती है, यानी इस बात पर डिपेंड करती है कि सब्जेक्ट किस पर्सन का है, वेदर इट इज सिंगुलर पर्सन और प्लूरल पर्सन, सिंगुलर है या प्लूरल है, और इसका नंबर पर डिपेंड करती है, सिंगुलर नंबर में या प्लूरल में पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन. So in other words, you can say a singular subject takes a singular verb and a plural subject takes a plural verb. Let's see some examples related to the same. The first example is Mohan is /are playing cricket. In this example, you can see Mohan is a singular subject. Mohan is one person. So singular subject is always agreed with. Singular subject always agrees with singular verb is. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज होगा क्योंकि मोहन एक है, इसलिए इज हो जाएगा. प्लूरल्स के साथ आर का यूज किया जाता है. सिमिलरली लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. गर्ल्स आर /इज स्टडीइंग. हियर यू कैन सी गर्ल्स प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा. द करेक्ट आंसर इज आर. गर्ल्स आर स्टडीइंग. गर्ल्स आर studying. Hope you have understood. Next is the boys have /has stopped playing. यानी लड़कों ने खेलना बंद कर दिया है. ओके, तो आप देख सकते हैं कि लड़के, यानी ये प्लूरल है अपने आप में. and when it is plural, so the plural verb will be used have. With singular subject we use has. Has singulars के साथ यूज किया जाता है. I और plurals के साथ have का यूज किया जाता है. boys plural है इसलिए have का यूज किया जाएगा. Next is he does /do not get up before sunrise. You know very well that in present indefinite singular subjects are followed by does, whereas plural subject and subjects and I both are followed by do. प्रेजेंट डेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बाद डज का यूज किया जाता है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट्स और आई के साथ डू का यूज किया जाता है. तो ही सिंगुलर है इसलिए डज का यूज किया जाएगा. ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल. The correct answer is does. Next and the last related to this introduction is Shiva hates /hate milk but her brother does not. Shiva एक इंसान है इसलिए the correct answer hates correct होगा क्योंकि शिवा एक है. Hope you have understood. In present definite present definite affirmative sentence, singular subject is followed by first form plus s or es, while plural subjects and I both are followed by ओनली फर्स्ट फॉर्म. सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस लगाते हैं, जबकि आई और प्लूरल्स के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, एस ए एस नहीं लगाते हैं. शिवा सिंगुलर है इसलिए सिर्फ हेट्स का यूज किया जाएगा ई एस फॉर्म का. लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. So next rule is when a noun phrase is used as a subject, the verb must agree with the head word. You should try to understand what is phrase. Students, phrase is a group of words which gives an incomplete meaning. Phrase एक group of words होता है जिसका के एक पूरा अर्थ नहीं होता है, अधूरा अर्थ होता है. तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में जबकि फ्रेज एक सब्जेक्ट हो सेंटेंस में, तो इसमें आपको यू शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू द हेड वर्ड ऑफ द फ्रेज, नॉट द कंप्लीट फ्रेज. पूरी फ्रेज पर इसमें ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ऐसे केस में सिर्फ आपको हेड वर्ड देखना. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी द फ्रेज इज वन ऑफ द बॉयज. यहाँ पर वन ऑफ द बॉयज फ्रेज है लेकिन इसका हेड वर्ड वन है. क्या है हेड वर्ड? वन. तो यहाँ पर जबकि वन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर लिव्स का यूज होगा, लिव का यूज नहीं होगा. होप यू हैव अंडरस्टूड. क्योंकि एस सिंगुलर्स के साथ यूज किया जाता है, प्लूरल्स के साथ और आई के साथ नहीं होता है. नेक्स्ट एग्जांपल इज वन ऑफ माय सिस्टर्स इज /are वेरी इंटेलिजेंट. तो यहाँ पर हेड वर्ड वन है,
मेरी बहनों में से एक, जब एक की बात हो रही है तो इज सिंगुलर है, इज यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज वन ऑफ देम, उनमें से एक, यानी हम सब की बात नहीं कर रहे, उन सब की नहीं, वन की बात कर रहे हैं, उनमें से एक की बात हो रही है तो वॉज करेक्ट होगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स वेल। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। Next slide is when two or more singular subjects are joined by and refer to separate persons or things, plural verb is used. याद रखिए जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों और वो दोनों ही अलग अलग हों तो उस केस में वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। आप देख सकते हैं मिस्टर सेन है, एक दूसरी है मिसेस सेन, तो जब ये दो लोग हैं एंड से जुड़े हुए हैं सिंगुलर नाउन से, तो इस केस में वर्ब हमेशा प्लूरल होगी यानी आर होगी। करेक्ट आंसर आर है यहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिल्ली एंड मुंबई इज ऑब्लिक आर बिग सिटीज। दिल्ली और मुंबई दोनों ही बड़े शहर हैं, दोनों, अब ये दो शहर हैं इसलिए आर का यूज किया जाएगा, इस तो हो ही नहीं सकता। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। लेट्स सी the next rule. If two singular nouns or adjectives joined by and refer to same person or thing, the verb must be singular. जब दो सिंगुलर नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हों और वो दोनों एक ही के बारे में, एक इंसान या एक चीज के बारे में बात करते हैं, तब वर्ब हमेशा सिंगुलर होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे केस में पहले नाउन से पहले आर्टिकल या पॉजिटिव का यूज किया जाता है, याद रखिएगा, दूसरे से पहले कभी भी नहीं होता है। अगर पहले वाले से पहले आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा सिर्फ एक है ये इंसान जिसमें दो क्वालिटी हैं। जब अगर दोनों से पहले आए ए एंड द या कोई भी पॉजिटिव, माय, आवर, लाइक दैट, तो फिर दोनों से पहले आने पर फिर दो हो जाएंगे, तब वर्ब प्लूरल होगी। जब एक से पहले आएगा सिर्फ तो समझ लीजिएगा वर्ब सिंगुलर होगी। देखते हैं। द पोएट एंड सिंगर इज ऑब्लिक आर डेड, तो आप समझ ही चुके होंगे आई होप, क्योंकि द जो है पोएट से पहले तो है, सिंगर से पहले नहीं है। इसका मतलब जो व्यक्ति की बात की जा रही है वो पोएट भी है, सिंगर भी है, दोनों क्वालिटी उसी में है। द पोएट एंड सिंगर, यानी वह व्यक्ति जो पोएट और सिंगर है मर गया है, तो वर्ब कौन सी होगी? जब एक ही व्यक्ति तो इज होगी। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज ऑब्लिक वर देयर, यानी प्रिंसिपल भी वही है और सेक्रेटरी भी वही है, क्योंकि सेक्रेटरी से पहले द का यूज नहीं हुआ है, पहले से पहले द का यूज हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जब एक ही व्यक्ति है तो वॉज का यूज होगा, वर का यूज नहीं होगा, क्योंकि वॉज सिंगुलर्स के साथ यूज किया जाता है, वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज माय अंकल एंड गार्डियन हैज ऑब्लिक हैव कम, मेरे चाचा और जो कि मेरे गार्डियन भी हैं। अब आप समझ ही गए होंगे दूसरे नाउन यानी गार्डियन से पहले माय नहीं दे रखा है, तो आप समझ जाइए एक ही व्यक्ति हैं जिनमें दो क्वालिटी हैं, तो इसका मतलब हैज का यूज होगा। हैज सिंगुलर्स के साथ आता है और हैव आई और प्लूरल्स के साथ आता है। नेक्स्ट इज अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज ऑब्लिक हैव कम, यानी एक पोएट भी है वही व्यक्ति और वही फिलोसोफर है। आप देख सकते हैं आर्टिकल आ रहा है पहले नाउन पोएट से पहले, दूसरे फिलोसोफर से पहले नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है। इसका मतलब क्या होगा? सिंगुलर्स के साथ आप जानते हैं हैज का यूज किया जाता है, आई और प्लूरल्स के साथ हैव का यूज किया जाता है। होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। Now we are going to discuss the next rule related to the previous rule. पिछले रूल से रिलेटेड ही है ये। Try to understand the difference. If two singular nouns or adjectives joined by and refer to separate persons or things, the verb must be plural. Articles or possessive adjectives are given before both nouns. मैंने आपको पिछले रूल में बताया था कि जब दो सिंगुलर नाउन्स या एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हुए हों और वो दोनों अगर एक ही व्यक्ति की बात करते हैं तो सिंगुलर वर्ब होती है, अलग अलग व्यक्ति की बात करते हैं तो प्लूरल वर्ब होती है। ये कैसे मालूम करेंगे कि एक ही व्यक्ति है या दो हैं? वो ऐसे मालूम करेंगे कि या तो आर्टिकल या पॉजिटिव पहले नाउन से ही पहले दे रखा होगा या एडजेक्टिव से पहले, दूसरे से पहले नहीं दे रखा होगा। ये ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं द पोएट एंड द सिंगर इज ऑब्लिक आर डेड। आप देखिए यहां पर आप देखेंगे कि पोएट से पहले भी दा है और सिंगर से पहले भी दा है, यानी दो व्यक्ति अलग अलग हैं ये, इसलिए आर का यूज किया जाएगा। द पोएट भी मर गया और सिंगर भी मर गया, दोनों मर गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट वॉज ऑब्लिक वर देयर। अब यहां देखिए अ ब्लैक है एक तो और दूसरे अ व्हाइट है, यानी दोनों से पहले ही ये एडजेक्टिव है ब्लैक व्हाइट, दोनों से पहले ही आर्टिकल अ का यूज किया गया है। इसका मतलब ये दोनों बिल्लियां अलग अलग हैं, एक नहीं है। अगर एक होती तो पहली वाले से पहले आ का यूज किया होता, दूसरे वाले से पहले नहीं होता। तो इसका मतलब वॉज सिंगुलर्स के साथ आता है, वर प्लूरल। जब ये दो अलग अलग हैं तो इसलिए वर का यूज होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स वेल। नेक्स्ट इज
माई अंकल एंड माई गार्डियन हैज ऑब्लिक हैव कम। अब यहाँ देखिए माई अंकल है, अंकल से पहले भी माई है और गार्डियन से पहले भी माई आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। और जब दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो हम हैव का यूज करते हैं प्लूरल्स के साथ और आई के साथ। हैज का यूज तो सिर्फ सिंगुलर्स के साथ होता है। हैव इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वॉज ऑब्लिक वर देयर। आप देख सकते हैं इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी द प्रिंसिपल, द इससे पहले भी आ रहा है और सेक्रेटरी से पहले आ रहा है। इसका मतलब इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू सेपरेट पीपल। दोनों अलग अलग लोगों की बात हो रही है, इसलिए वर का यूज करेक्ट है। प्लूरल्स के साथ वर का यूज किया जाता है, जबकि सिंगुलर्स के साथ और आई के साथ वॉज का यूज होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स वेल। Thanks a lot for watching this video. I once again humbly request you to subscribe my YouTube channel American English Academy and press the bell icon so that you should receive all the notifications of my upcoming videos. Kindly share this video with others who are preparing for the competitive exams so that they should get some benefit. Thanks a lot for watching this video. Kindly express your opinion writing the comments in the comment section. Thanks a lot. Bye bye. Take care. We shall meet in the next video.